Sahil and Prajwal from KCMT2 campus. So Sir. I welcome you all. Yes, sir. And Sahil and this Thank Prajwal, you, sir. I had a word with Mrigen sir, and I think you all know that separate group has been created for you people. Same for here, KCMT1 campus also. And from now Yes, sir. onwards, you will be joining with us, and all the subjects are being taken by the KCMT1 faculty. And I hope you have got the timetable also. Yes, sir. We have shared it on the group. Yes, sir. We don't know you by faces. Yes. We have, like, I know this Sahil by face. So if possible, you can on your videos at times so that we can identify the faces. Yes, Sahil, I know because I met you in KCMT1 campus. How are you? Yes, sir. Good. Fine, sir. Yes, sir. Prajwal, can you on your video so I can see your face? Prajwal, are you here? Can you hear me? Chale. Rest of the people are from KCMT1 campus again. But again, many people are missing. One thing is clear to both of you. Both of you means the KCMT1 campus and KCMT2 campus. That I will be tracking your attendance online daily basis. Right? Yes, sir. So Abhishek, can you hear me? Abhishek. Yes, sir. So please tell it to your all the brothers and sisters of the class that a track on the attendance is there, and Sure, sir. and me myself is monitoring the attendance because I need to send the attendance on AKTU. Okay, because AKTU is Sure, asking that how many students are attending the classes. So I will maintain the register also just like the class register. So I will maintain it from tomorrow onward, and I will mark it. Right? Okay, sir. So this please inform it to your class because they are a little bit casual in approach. And Sure, sir. so today was the first day, and I hope I think 2-3 lectures have been done today. Abhishek, कौन-कौन से lecture हुए आज? सर पहले दृष्टि मैम का हम लोगों का तो एचआर का था सर, तो दृष्टि मैम का तो हुआ नहीं. नहीं हो पाया. The problem with Christy is that because she she sits at head office, and these days yes, sir. the admissions are coming. So maybe possible that there is a chance she might have not got the time to take the class, but I will inquire with her. Okay, so No problem. if the lecture has not been done in the afternoon, she has to take the lecture in the evening, right? So Okay, sir. I request whose mic is on, please mute it. Rishabh, is it Rishabh? Yes, sir. Please, if any disturbance is there, so kindly mute your mic so that it will not disturb the class. So right, these are the few things. One or two things are also there which I like to inform you. I am making the list of specialization, and within a day or two it will be complete. So I will share it on the group, and you will check your specialization area so that the same thing can be sent or uploaded on AKTU's ERP, so that you may not be in problem. And the same subjects you have to chalk out from the timetable, and you have to attend the classes accordingly. I have already told about the specialization. One more specialization we are going to have in our KCMT, like IT in minor, right? So I had a word with this IT regarding with the director sir, and he opined that okay, we can do it for those who have done BCA and some other computer course. So we can open the IT in minor for them, not in major, in minor. Okay? And the condition is this, that we cannot provide the online classes on daily basis, but they can get the assistance, they can get the kind of stuff material from the teachers. So we can have a week lectures comprising the entire syllabus for them only.
for IT. Abhishek, you were also asking about the IT with me, I hope. Yes, sir. है ना? Yes, sir. So if you opine or if you are interested, so you can do it also. You can switch to marketing plus minor also. Right? Okay, sir. हाँ, I'll let you know. हाँ, तो ये मुझे बता दीजिएगा, तो माइनर में हम उसको ओपन कर सकते हैं आईटी को वेरी सून. Sure, sir. Okay, so coming to the important part, and I'm starting my paper, that is International Business Management, and as you all know that this is the paper which is compulsory for all. Yes, sir. Or whatever is your specialization area, it hardly matters, and it's a compulsory paper. One more paper is there, strategic management. I have not mentioned it in the timetable because yet not the faculty is not finalized to who will take that paper. So as soon as it is being done, I will inform you. Right? And can anyone please tell me that why this paper we are going to talk about international business environment? Why in MBA we need to discuss it? Anyone? Anyone? Why we talk about this paper? Why you have this? हाँ. Being a student of MBA, हमको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल बिजनेस का क्या एनवायरनमेंट होता है, उसमें क्या क्या मैनेजरियल रोल होते हैं, क्या उनकी पॉलिसीज होती हैं और किस तरीके से वो अपने बिजनेस को रन करते हैं. सो बेसिक अगर हम देखें तो यही एक मेन रीज़न होता है कि हम अभी तक सिर्फ इंडिया या फिर अपने जो भी बिजनेस बेसिकली उसके बारे में हम पढ़ लेते, बट यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि हम बिजनेस को एक इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके से रन करते हैं. Okay. See, इसको ऐसे समझ के चलें, whatever you have said is all right, Abhishek, and I add on a few things like when we talk about international business, हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं वो कंपनीज वो कॉर्पोरेट्स आ जाते हैं जो बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं. In India, there are many companies who are working on the top level and providing you the products and the services of various kinds. All over the world, even they are doing well, right? So today is the scenario. अगर आप खुद भी देखें तो in a day, whatever products you use on daily basis, you woke up early in the morning and you use सबसे पहला हम काम क्या करते हैं, टूथपेस्ट करना. सुबह उठते normally we do the toothpaste. So you use Pepsodent or Colgate for example. ठीक है? So they are the multinational corporations. Colgate itself is a very big brand, supplying Colgate to many countries. You take a bath with Dove or Pears or Lux or whatever, HUL. HUL is the brand which makes that Lux and all these things, right? Pears is a very big brand, and ITC is having many soaps and shampoos range. Then you wash your clothes with Ariel or Surf Excel. So when you talk about your daily routine, you will find that more than 50 brand you use in your life, and you don't know, you don't recognize even that which company is making those brands, right? So this is the thing. Okay, from the last many years, we are habitual of using these big brands in our daily routine. So from where these brands are coming, who is supplying us, from which country that brand belongs to, and what kind of quality they are offering us, what is the impact of that brand on our health, on our daily life, on our the way we live in. So ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इंटरनेशनल बिजनेस के डिस्कशन का पार्ट है. एंड एज एन MBA स्टूडेंट, if you complete your MBA, you will join some company, you will work for these brands either in the sector of marketing or in other sector like HR or finance. You have to work, right? So you may have an idea about those companies who are making them, from where they are, how they are procuring the raw material, and from where, how they are manufacturing those big brands, what kind of marketing strategies they are adopting to market their brand, right? So various things are there associated with the same term, that is international business. So that's why
It's an important paper. We need to discuss it in our syllabus, in your syllabus of MBA, because somehow either you work for them or you start your own business. So even if you start your own business, then again it is having an importance, because you have to know that to whom you have to compete with. किससे आपको compete करना है, आपके अगेंस्ट में कौन खड़ा हुआ है, राइट? तो इसीलिए ये इसका एक लॉजिक है, एक इसका एक ऑब्जेक्टिव है कि हम क्यों इंटरनेशनल बिजनेस की बात कर रहे हैं आपके एमबीए सिलेबस में. आई होप इट इज क्लियर. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so we know more about it, and just a second, I'm sharing a slide. So can you see, all of you, Yes, this sir. slide is visible? So Yes, with sir. the help Sir, of this, yes, sir. okay, so Yes, with sir. the help of this slide, इंटरनेशनल बिजनेस को समझने की कोशिश करते हैं. और इससे पहले कि इंटरनेशनल बिजनेस पे हम बात करें, थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं डोमेस्टिक बिजनेस के बारे में, क्योंकि उससे पहले की जो बात है, बिजनेस की बात चल रही है, तो डोमेस्टिकली जो बिजनेस होता है उस पर भी जरा सा हम ध्यान दे लेते हैं. वो क्या है? As you can see, domestic business, a business that acquires all its resources and sell its products or services within a single country. ऐसा बिजनेस जो अपने उत्पादों को एक निश्चित पेरिफेरी में, एक निश्चित बाउंड्री के अंदर ही बना रहा है और बेच रहा है, ठीक है? तो ऐसे बिजनेस को हम संज्ञा देते हैं या नाम देते हैं डोमेस्टिक बिजनेस का. देयर आर मैनी, इंडिया में स्पेशली अगर मैं बात करूं तो हम एमएसएमई सेक्टर की बात करते हैं, ठीक है? एमएसएमई, दैट इज माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंटरप्राइजेस. पहले इसको हम बोलते थे स्मॉल स्केल सेक्टर, तो नाम चेंज हो गया है, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंटरप्राइजेस हो गए. इसमें सारी ही कंपनीज छोटी जो कॉटेज चल रही हैं, जो घरों में चल रही हैं, जो लघु उद्योग हैं, हथकरघा उद्योग हैं, वो सारे इसमें कवर होते हैं. तो ये जो जनरली कंपनीज छोटे लेवल पे शुरू होती हैं, इनके जो भी उत्पाद बनते हैं ये डोमेस्टिक लेवल पे ही जनरली ऑपरेट करती हैं. जैसे स्टेट के अंदर हैं कई सारी छोटी छोटी फर्म्स, ठीक है, स्टेट में ही सप्लाई कर रही हैं, स्टेट के बाहर नहीं जा रही हैं. कुछ अगर गई भी हैं तो वो ऑल ओवर इंडिया को कवर कर रही हैं, उसके बाहर नहीं बेच रही हैं. तो ऐसे जो सारे बिजनेस छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, दे ऑल आर कवर्ड इन द डोमेस्टिक बिजनेस, जो एक ही देश के अंदर रहकर अपने उत्पाद को बेच रहे हैं. क्लियर? अब इससे ऊपर की अगर हम बात करें, डोमेस्टिक के बाद क्या है भाई, फिर तो इंटरनेशनल बिजनेस की हम बात करते हैं. जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आप अपने डेली रूटीन की भी बात कर लें, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सुबह से शाम तक जो भी आप ब्रांड यूज कर रहे हैं उसको लिख लें कॉपी पे, आपको खुद पता लग जाएगा कि आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं. तो इंटरनेशनल बिजनेस की अगर हम बात करें तो अ बिजनेस दैट इज प्राइमरली बेस्ड इन अ सिंगल कंट्री. देखिए, इंटरनेशनल बिजनेस के भी कई सारे डायमेंशंस हैं, वो अभी हम धीरे धीरे करके जानेंगे. लेकिन प्राइमरली अगर हम देखें तो ऐसा बिजनेस जो किसी एक देश से ताल्लुक रख रहा है, मतलब उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो प्राइमरली किसी एक देश में हो रही है, लेकिन कई देशों में वो रेवेन्यू का सोर्स है, कई देशों में उसका उत्पाद बिक रहा है, ठीक है, और एक्सपोर्ट किया जा रहा है उसको. तो ऐसे बिजनेस को हम नाम देते हैं इंटरनेशनल बिजनेस, जो एक देश की बाउंड्री तक सीमित नहीं है. अब उसमें 2 देश भी हो सकते हैं, उसमें 10 देश भी हो सकते हैं, उसमें उससे ज़्यादा देश भी हो सकते हैं, ठीक है. अब उसी में ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करता हूँ मैं. थोड़ा इसके आगे हमने मैनेजमेंट लगा दिया, तो मैनेजमेंट का देखिए सिंपली मतलब यही है कि उस बिजनेस को हम कैसे मैनेज कर रहे हैं. अब वो मैनेजमेंट के भी बहुत सारी उसमें बातें हैं कि मैनेज भी हम कई चीज़ों पे कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, मैनेजमेंट किस चीज़ का किया जा रहा है भाई, इतने सारे उसमें एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनका मैनेजमेंट किया जा रहा है. उसमें इतने सारे उत्पाद जुड़े हुए हैं, वो कहाँ से प्रोक्योर किए जा रहे हैं, उनके सप्लायर सैकड़ों हैं, वो कैसे सप्लाई कर रहे हैं. अमेज़न का नाम सुनाइए सभी ने. Yes, sir. मेरे ख्याल से अमेज़न पे कोई शायद ही चीज़ बची होगी जो उस पर अवेलेबल ना हो अब आज की डेट में, ठीक है. यहाँ तक कि बिल पेमेंट वगैरह भी उस पर सब चीज़ आ चुकी है.
मनी ट्रांसफर भी आ चुका है, तो ग्रॉसरी सब्जी वगैरह सारी चीजें आ चुकी हैं। तो अमेजोन आप देखिए कि किस लेवल पे काम कर रहा है कि उन्होंने दुनिया भर की जितने भी आपके डोमेस्टिक आइटम्स हैं, जो भी एफएमसीजी के उत्पाद हैं, जो भी आपकी डेली यूज की चीजें, सब कवर कर रखी हैं, सब। और वो कहाँ से प्रोक्योर करते हैं और कहाँ भेजते हैं, सप्लाई चेन सोचिए इनकी, लॉजिस्टिक सोचिए इनका कि कैसे वो सेफली आपके घर तक पहुँच रही है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं बेसिकली ये इसके मैनेजमेंट का पार्ट है। तो इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट बेसिकली यही बता रहा है कि ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज हो रही हैं और कंपनी इनको कैसे इनका मैनेजमेंट कर रही है, ठीक है। Now, international business is defined as global trade. इसको global trade के नाम से भी जाना जाता है, of goods and services or investment. More comprehensive view does not focus on the firm. इसमें firm महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन exchange process important है। तो international business में जनरली हम जो बात करते हैं export import की, अगर वो भी हो रहा है, ट्रेड भी हो रहा है दो देशों के बीच में, तो that is the part of the international business. So it occurs when a government does not attempt to influence through quotas or duties what its citizens can buy from another country or what they can produce or sell to another country. वो सारी चीज़ें आ रही हैं जो आपके एक नॉर्मल नागरिक उस देश का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, दूसरे देशों से उसको मंगा रहा है या वहाँ पे वो चीज़ें आयात की जा रही हैं। The benefit of trade allow a country to specialize in the manufacture and export a product that can be produced more efficiently in that country. अच्छा, इसका बेनिफिट क्या है? देखिए इंटरनेशनल बिजनेस से क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो फर्म्स हैं, जो कंपनीज हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के उत्पादन में, उसको प्रोडक्शन में स्पेशलाइज हो जाती है, उनका स्पेशलाइजेशन हो जाता है, क्योंकि वो उस लेवल उस काम को कई सालों से कर रहे हैं, तो धीरे धीरे दे गेट स्पेशलाइज्ड। And the pattern of international trade displays a pattern that are easy to understand. Like जैसे for example दे रखा है कि Saudi Arabia is in the production of oil and supplying it all over the world. Mexico is specialized into labor intensive goods. Labor intensive goods होती हैं जहाँ पर mainly जो man made goods हैं, यानी कि मशीनों पर लेबर काम कर रही है और उनके द्वारा जो चीज़ें बनाई जा रही हैं, that comes into labor intensive goods. जबकि जो बाकी देश हैं जैसे चाइना, जापान या ताइवान वगैरह, ये मल्टी फोल्डेड है, मतलब ये मल्टी डायमेंशंस में इनका स्पेशलाइजेशन है, नॉट इनटू वन कैटेगरी। चाइना का अगर अभी तक हम बात करें तो चाइना वाज स्पेशलाइज्ड इनटू ऑलमोस्ट एनी काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। चाइना इज नॉट लेबर इंटेंसिव बट मैन्युफैक्चरिंग इंटेंसिव है, जहाँ पर हर चीज़ का तोड़ है। अगर आप देखें कि जापान कोई चीज़ बना रहा है तो जापान की चीज़ को ही वो चाइना वाले बना देते हैं, लेकिन बहुत सस्ते में। तो ये सारा चाइना की यूएसपी है। अब इसमें दो टर्म्स और हैं जो इंटरनेशनल बिजनेस में ही हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे हम एमएनसीज की बात करते हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस की। कोई बताना चाहेगा व्हाट इज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन? आपने पढ़ा होगा कहीं या सुना होगा एमएनसीज के बारे में। सब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस ऐसी कंपनीज होती हैं जो बेस्ड होती हैं किसी और कंट्री में, बट अपना बिजनेस एक्सपेंड कर लेती हैं किसी और कंट्री में। लाइक अगर बात करूं इन्फोसिस या गूगल की या ऐसी बड़ी कंपनीज, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, तो उनका हेडक्वार्टर और जो ओरिजिन है, ओरिजिन बेस्ड जो कंपनी है, वो अलग कंट्रीज में वर्क कर रही हैं, हेडक्वार्टर्स जहाँ पे हैं, और बाकी जो अलग अलग कंट्रीज में उन्होंने अपना बिजनेस एक्सपेंड किया हुआ है, अपने कॉर्पोरेट ऑफिसेज और बाकी ब्रांचेस अलग अलग कंट्रीज में खोली हुई हैं। तो ये मल्टीनेशनल कंपनीज का एक तरीके से बिल्कुल ठीक है। सो बिल्कुल सही कहा अभिषेक ने। जैसे कि मल्टीनेशनल नाम से ही क्लियर है, मल्टी कई सारे देशों में, नेशनल कई सारे देशों, मल्टीनेशनल का मतलब, और कॉर्पोरेशंस ऐसे बड़े कंपनीज, ऐसे बड़े देश, ऐसे बड़े कॉर्पोरेट्स जो एक साथ कई देशों में अपनी प्रेजेंस रख रहे हैं, एक साथ कई देशों में अपने उत्पाद को बेच रहे हैं, ठीक है। दे आर नोन एज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। जनरली यहाँ पर दो बातें और इम्पोर्टेंट हैं, अभिषेक ने बताई भी कि वो उनका हेडक्वार्टर किसी एक देश में होता है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक और ऐड ऑन कर दे रहा हूँ। यहाँ दो बातें इंपॉर्टेंट हैं, हो सकता है कि आगे की स्लाइड में उनको इस्तेमाल किया जाए, होम और होस्ट। एक तो होम कंट्री और होस्ट कंट्री। तो इसका क्या मतलब होता है ये भी समझ लीजिए, मल्टीनेशनल के साथ में हम इस्तेमाल करते हैं।
होम कंट्री, whenever I am using the word home nation या home country, it means जहाँ से वो मल्टीनेशनल जुड़ी हुई है, जिस देश की वो कंपनी है, जिस देश की वो कंपनी है, दैट इज रेफर्ड एज होम नेशन। और जो होस्ट नेशन है वो है मेहमान देश, यानी कि जिन देशों में उसका व्यापार हो रहा है, जिस देशों में उसके उत्पाद बिक रहे हैं, वो सब कहलाएंगे होस्ट नेशन। तो अब यहाँ पर बात क्या आ रही है, ज़रूरी नहीं है कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन सिर्फ अपने देश से ही ऑपरेट करें, वो अपने फीजिबिलिटी के अनुसार अगर उन्हें लगता है कि किसी और देश में प्रोडक्शन करना उनके लिए आसान है, तो वो अपनी फैक्ट्रीज, वो अपने प्रोडक्शन हाउसेज वहाँ पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि सैमसंग बहुत बड़ा ब्रांड है। सैमसंग किस देश का है, कोई बता सकता है? सैमसंग इज फ्रॉम विच कंट्री? साउथ कोरिया। इज फ्रॉम साउथ कोरिया, बिल्कुल सही, साउथ कोरिया। यस, इट्स फ्रॉम साउथ कोरिया। बट साउथ कोरिया का होते हुए भी सैमसंग के प्रोडक्शन यूनिट्स इंडिया में लगे हुए हैं, ठीक है, और सैमसंग के मोबाइल फोन्स इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो ये भी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का ही एक फीचर है कि उन्हें यहाँ पर लेबर सस्ती मिल रही है, उन्हें यहाँ पर बाकी लैंड और फैक्ट्री का पूरा सेटअप, बिजली, सारी चीज़ें यहाँ पर अपने देश से सस्ती पड़ रही है, तो उन्होंने यहीं पर ही सेटअप लगाकर उनको मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया है। ये भी मल्टीनेशनल बिजनेस का ही एक फीचर है। अब इसमें थोड़ा सा कुछ फिलोसोफर का मत है कि भाई वो ग्लोबल बिजनेस बोलते हैं इसको। तो अगर आप अलग अलग बुक्स में बात करेंगे तो यू विल फाइंड द सेम काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजी। इंटरनेशनल बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल बिजनेस को कहीं कहीं किसी बुक में इंटरनेशनल मार्केटिंग भी बोल दिया गया, कहीं पर इसको मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस का बिजनेस भी बोल दिया गया, कहीं पर इसको ग्लोबल बिजनेस भी बोल दिया गया। तो देखा जाए ऊपरी स्तर पर, one and all, these all are the same kind of synonyms which are used for internationally traded commodities, internationally traded things, right? So global business भी उसमें ही इस्तेमाल किया जाता है, और इसका भी वही है कि ग्लोबल का मतलब यही है ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रेजेंस, ग्लोबली ऐसे उत्पाद, ऐसे बिजनेसेस जो पूरे विश्व में समान रूप से प्रेजेंस रखते हैं, समान रूप से उपलब्धता रखते हैं और सारे कस्टमर्स को एक सी क्वालिटी देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ठीक है। ऐसे बिजनेसेस को हम ग्लोबल बिजनेस की श्रेणी में लेकर आते हैं। मतलब शायद ही अगर हम देखें तो वो कोई ऐसा देश होगा जहां पर उनकी उपलब्धता नहीं होगी। ऑलमोस्ट दे आर प्रेजेंस इन मैनी नेशंस। कोक पीते हैं सब? कोक, कोका कोला? यस सर। Yes, sir. कहाँ का ब्रांड है कोक? एटलांटा। कोक कहाँ का ब्रांड है? एटलांटा सर। अटलांटा, यूएस? यस सर। यूएस का ब्रांड। अच्छा, कोक कितने देशों में प्रेजेंस है, कोई ये बता सकता है? कितने देशों में कोक बिकता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड? सभी में बताया सर। सभी में? श्योर? 105 100? I guess देखिए। 5 105। दुनिया में लगभग 210 देश हैं, जिनमें से 210 देश मतलब लिस्ट में हैं, लेकिन 200 देश समझे जाते हैं क्योंकि बहुत सारे डिस्प्यूटेबल भी हैं। तो जैसे ताइवान और चाइना का ही अगर हम देखें तो वो उसको अलग कंसीडर नहीं करा जाता। तो ऐसे अगर हम देखा जाए 200 देश भी लेके चलें तो कोक की जो प्रेजेंस है 190 देशों में है करंटली। अभी 190 देशों में कोक प्रेजेंट है। बाकी के जहाँ पर नहीं है, कुछ उसमें मुस्लिम देश हैं जहाँ पर उसको पीना बैन है, सरकार ने ही बैन कर रखा है। नॉर्थ कोरिया एक देश है जहाँ पर प्रेजेंट नहीं है कोक। तो ऐसे कुछ देश हैं जहाँ पर उसकी प्रेजेंस नहीं है, कुछ फैक्टर्स, कुछ रीजंस की वजह से। तो ऑलमोस्ट सारे देशों में कोक की प्रेजेंस है, ठीक है। तो उसको हम किस श्रेणी में लाके रखेंगे? ग्लोबल बिजनेस, ग्लोबल बिजनेस, ठीक है। तो ये ग्लोबली ट्रेडेड कम्युनिटीज का पार्ट है, ग्लोबली उसको सब जगह देखा जा रहा है और खरीदा जा रहा है। आइए अब इसके बाद बात करते हैं हम इसकी ज़रूरत क्या है, मतलब व्हाई वी टॉक अबाउट इंटरनेशनल बिजनेस, व्हाट इज़ द नीड फॉर इंटरनेशनल बिजनेस,
क्यों हम इसकी इंटरनेशनल बिजनेस की नीड को अगर हम समझने की कोशिश करें तो देयर आर सेवरल पॉइंट्स, एक एक करके इस पे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, नंबर 1 इज टू अचीव हाई रेट ऑफ प्रॉफिट्स। हाई रेट ऑफ प्रॉफिट्स, देखिए मैंने आपको शुरू में बताया था, डोमेस्टिकली जब हमने बात की थी तो एमएसएमई की बात करी थी। एमएसएमई कुछ उत्पाद अगर बना रही है, तो एमएसएमई अगर किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है तो, और वही उत्पाद एक बड़ी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, ठीक है, दोनों में अंतर क्या है? जब बड़ी कंपनी बना रही है तो दैट कंपनी इज एंजॉइंग दी प्रॉफिट। सॉरी हाँ, तो दैट बिग लार्ज कंपनी, लार्ज स्केल कंपनी इज एंजॉइंग द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल लाइक प्रोडक्शन में इकोनॉमी हो रही है। घर पे ऐसे मान के चलिए आपको 2 लोगों के लिए चाय बनानी है, ठीक है, बनाई किसी ने चाय घर पे? यस सर। यस सर। सभी लोगों ने बना ली। हमें लगा था कि अच्छा, मुझे लगा था कि शादीशुदा लोग ही बनाते हैं, हम तो अपनी कैटेगरी की बात कर रहे थे। चलो खैर, अच्छा है, बना लिए तो। नो सर। अच्छा, तो चाय जब आप बनाते हैं तो आप 2 कप अगर चाय बना रहे हैं, हो चुकी है सर पहले से। नहीं सही भी है, टाइम रहते ही अगर आप सारी चीजें सीख जाए तो बाद में परेशानी नहीं होती। तो हाँ, तो होता क्या है कि जब आप चाय बना रहे हैं, 2 कप के लिए 2 कप चाय बना रहे हैं, तो आप देखिए गैस बराबर जल रही है ना। आप भगोना या जो भी फ्राई पैन इस्तेमाल कर रहे हो वो आपको लेना ही लेना है। आप दूध भी डाल रहे हो, चीनी पत्ती सब कुछ डाल रहे हो उसमें। अब 2 से अगर आप 4 बनाओ, 4 कप, तो 2 और 4 में देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस, हार्डली एनी डिफरेंस। एकदम से 2 दोस्त और आ जाते हैं, आप थोड़ा सा पानी और छोड़ देते हो उसी में, थोड़ा सा पत्ती और डाल देते हो, जरा सा दूध और डाल देते हो, थोड़ी सी चीनी, 2 कप की चाय कितनी हो जाती है? 4 कप। तो है ना, 4 से 5 भी हो जाएगी, 10 भी हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जितना ज्यादा हम प्रोडक्शन करेंगे उतना हमारा जो कॉस्ट है वो नीचे आती जाएगी, ठीक है। तो उन चीजों को देखने के लिए, अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए और ज्यादा प्रॉफिट को एंजॉय करने के लिए कंपनीज क्या करती है, इंटरनेशनली बिजनेस में आती है, इंटरनेशनली उसको बेचने के लिए आती है। सो दिस इज वन ऑफ द नीड। पहले ऐसा नहीं था, पहले इतनी पॉपुलेशन भी नहीं थी। आज जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो कंपनीज को सोचना पड़ रहा है कि कितने स्तर पे हमें वो चीज़ बनानी है, ठीक है, ताकि हमें सस्ता पड़े। फिर बात आ रही है एक्सपेंडिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी बियॉन्ड द डिमांड ऑफ द डोमेस्टिक कंट्री। Expanding the production capacity beyond the demand of the domestic country. What does it mean? घर में जितनी डिमांड है, हाँ सर, अपने घर की डिमांड के अलावा दूसरे घर की डिमांड भी पूरा करते हैं। यस, प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी हमें बढ़ानी है कि हम दूसरे देशों की भी डिमांड को मैच कर पाए। डोमेस्टिकली तो हमें फुलफिल करनी ही करनी है, उसके बाद जो बचेगा सरप्लस वो हमें दूसरे देशों में भी बेचना है। तो दिस इज वन ऑफ द नीड कि इतना बनाओ पहले कि भाई दूसरे देशों में आप बेच पाओ डोमेस्टिकली उसको बनाने के बाद। फिर है सीवियर कंपटीशन इन होम कंट्री। हमारे देश में या किसी भी देश में अगर होम का नाम ले रहे हैं तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बाहर और भी ज़्यादा है, लेकिन उस कंपटीशन से निकलने के लिए, अपने आप को एक लेवल पे लाने के लिए हमें क्या होगा, दूसरे को बीट करना है, तो हमें एक पर्टिकुलर टैग चाहिए, हमें एक पर्टिकुलर ब्रांड नेम चाहिए। वो हमें इंटरनेशनल बिजनेस में मिलेगा कि भाई हम इंटरनेशनल बिजनेस में हैं और हम एक उत्पाद बना रहे हैं, ठीक है, और वो एक्सेप्टेबल है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो इस ऐसे करके वो कंपनीज क्या करती हैं, अपने उत्पाद को मार्केट में बेचती हैं। फिर एक बात और है, लिमिटेड होम मार्केट। भाई आपका जो होम मार्केट है वो निश्चित है, उसमें कस्टमर ऐड नहीं हो सकते। अगर वो पूरा भर गया है, यानी पूरे कस्टमर अगर आपने उसमें बना लिए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं बाहर निकलना पड़ेगा, आपको बाहर की तरफ रुख करना पड़ेगा।
नेस्ले का नाम सब जानते हैं, नेस्ले? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हाँ, मैगी खाते ही होंगे। तो Yes, sir. जी सर। कोई बताएगा नेस्ले कंपनी कहाँ की है? नेस्ले कंपनी कहाँ की है? इंडियन है? स्विट्जरलैंड। 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 कौन बता रहा है? अभिषेक। अभिषेक। ठीक। ठीक बताया आपने, स्विट्जरलैंड की कंपनी है नेस्ले। बहुत से बच्चे, बहुत से लोगों को अभी तक ये भी नहीं मालूम होता है कि नेस्ले कहाँ की कंपनी है। मैगी सब जानते हैं, ठीक है, बट दे Yes, डोंट नो कि वो है कहाँ का, और वो यही मान के चलते इंडियन कंपनी है। मैगी मतलब इंडियन, देसी। तो मैगी मैगी बरसों से खा रहे हैं, बट स्विट्जरलैंड की कंपनी है नेस्ले। तो ये जानकर ताज्जुब होगा कि नेस्ले का जो बिजनेस है वो 20% स्विट्जरलैंड से है और 80% बाहर के देशों से है। मतलब समझे कि Yes, sir. उनकी जो टोटल सेल्स है वो सिर्फ 20%, 100 में से 20 मैगी अगर बिक रही है तो स्विट्जरलैंड में बिक रही है, और 80 बिक रही है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो अगर ऑल ओवर दी वर्ल्ड अगर हम हटा दें और स्विट्जरलैंड के भरोसे नेस्ले कंपनी रहे तो एक दिन में ही वो बैठ जाएगी, एक दिन के बाद ही कंपनी बंद हो जाएगी। तो ये रेस्ट्रिक्शन है कि लिमिटेड होम मार्केट। स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन ही कितनी है? आपके यूपी का 1/4 होगा। यूपी की पॉपुलेशन का भी अगर आधा कर दोगे तो भी स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन उससे भी कहीं कम होगी, ठीक है। तो लिमिटेड नंबर है, इसीलिए उस कंपनी को आगे निकलना पड़ा और पूरे देश में अपना जो सामान है, जो भी उत्पाद है उसको बेचना पड़ा। तो ये कंस्ट्रेंट है, इसीलिए हमें इंटरनेशनल बिजनेस की देयर इज अ नीड। फिर आती है पॉलिटिकल कंडीशंस। पॉलिटिकल कंडीशंस अगर हम पॉजिटिव वे में बात करें, जैसे बहुत से देशों में क्या होता है कि इनवाइट किया जाता है कि आप आइए हमारे यहाँ पर बिजनेस शुरू कीजिए, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हम आपको देंगे। इंडिया इज वन ऑफ देम। इंडिया इनवाइट मैनी कंपनीज फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड टू डू द बिजनेस in their nation, in India, and several kind of facilities are also provided by the Indian government. Cheaper rates, land, taxation, subsidy और दुनिया भर की चीज़ें, लाइसेंसिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें वो मुहैया कराते हैं, टैक्स में रिबेट। तो ये सब पॉलिटिकल कंडीशंस हैं। या किन्हीं दो देशों के बीच में मित्रता है बहुत अच्छी, तो भी उनमें देशों में आदान प्रदान ईजिली हो जाता है, और उसका बेनिफिट लेने के लिए कहीं ना कहीं जो कंपनीज हैं वो उसका फ़ायदा उठाती हैं और इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ अग्रसर होती है। फिर है अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजरियल कॉम्पिटेंस, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजरियल कॉम्पिटेंस। आज की डेट में देखिए जो टेक्नोलॉजी है वो किसी एक देश तक सीमित नहीं रह गई है। यू कैन बाय द टेक्नोलॉजी फ्रॉम जापान। अभी इसी महीने आपने देखा होगा हमने रूस से कुछ खरीदा था। क्या खरीदा था, कोई बता सकता है क्या? राफेल। राफेल खरीदे थे, है ना, हवा में उड़ते हुए आए थे। 6 राफेल थे, 6 राफेल खरीदे गए। तो देखा जाए तो राफेल इज व्हाट, इट्स अ टेक्नोलॉजी व्हिच वी बाय फ्रॉम रशिया एंड फ्रांस से आए, तो फ्रांस से आए थे वो तो। फ्रांस से, सॉरी, ठीक है। तो हमने वहां से राफेल खरीदा। बेसिकली हमने टेक्नोलॉजी खरीदी। ऐसा नहीं है कि इंडिया टेक्नोलॉजी में पीछे है, इंडिया के पास भी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी टेक्नोलॉजी और उन्नत है, एडवांस है, ठीक है, जिस वजह से हमें उसको खरीदना पड़ा। तो जो बेसिकली आप जो देख रहे हैं 6 पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजरियल कॉम्पिटेंस। All over the world, the technology is available, and it is up to you that which technology you want to purchase from which nation. ठीक है, किस देश से हम खरीदना चाहते हैं। इंडिया की भी जो बहुत सी टेक्नोलॉजी है वो दूसरे देश खरीदते हैं, और भी जो अगर हम देखा जाए विकसित देशों में भी बहुत से देश हैं जो उस टेक्नोलॉजी को खरीदना चाह रहे हैं। आज की डेट में वैक्सीन पर काम हो रहा है। रशिया ने सबसे पहले कोविड का टीका बना लिया, लेकिन उसको WHO से भी मान्यता नहीं मिली है,
और उसका अभी थर्ड ट्रायल चल ही रहा है, ठीक है। तो वो भी अगर टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखा जाए तो अभी अपना वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए कि जिस पे सबको भरोसा हो। इंडिया का स्टेटमेंट ये है कि अभी नेक्स्ट ईयर ही टीका आएगा, जब तक कि हम फुल प्रूफ नहीं हो जाते कि हाँ वो टीका बिल्कुल सक्सेसफुल है और उसका कोई इल इफेक्ट या साइड इफेक्ट नहीं है। तो ऐसा भी इंटरनेशनल बिजनेस की नीड को दिखा रहा है। फिर बात आती है कॉस्ट ऑफ मैन पावर, ट्रांसपोर्टेशन। देखिए आज की डेट में जो मैन पावर की कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं कम हुई है। पहले ट्रांसपोर्टेशन अगर आप देखा जाए वो साधन नहीं थे, कम तो नहीं कह सकते हम, स्थिर भी हुई है। और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट में बहुत सी जगहों पे किराया बढ़ा भी है, लेकिन उन्नत तरीके आने से, एडवांस तरीके आने से ट्रांसपोर्टेशन के लॉजिस्टिक्स में बहुत कुछ चेंज हो चुका है। तो उस वजह से कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी है उस वजह से जो बिजनेस है उसको फायदा पहुंचा है, ठीक है। वो पहले चीजें जो ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, नाउ अ डेज दे कैन इजीली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। आई गिव द एग्जांपल ऑफ Amazon in the beginning, and suppose if you are in Bareilly and you want to purchase a refrigerator from Amazon online, now just you can imagine that how they are delivering those big refrigerators or LED television from one front or from one corner of the world to the other corner. They are sitting somewhere in US and they are working on your order. You don't know even from where they are procuring those refrigerators and televisions or LEDs and how they are supplying it to you without any scratch. This is basically the level of transportation, the advancement of transportation, because of which the companies are working. Getting what I mean? Yes, sir. उसके Yes, बाद sir. हाँ, उसके बाद देखिए नियरनेस टू रॉ मटेरियल। नियरनेस का मतलब ये है कि जैसे मैंने बताया कि अगर सैमसंग ने इंडिया में अपनी फैक्ट्री आउटलेट लगाया मैन्युफैक्चरिंग का, उसके पीछे भी कोई रीजन है। सो दे वांट टू बी नियर टू द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल बेसिकली द वन हु इज सप्लाइंग इट, ठीक है। चाइना भी बहुत सी जगहों पर रॉ मटेरियल इंडिया को सप्लाई करता रहा है, अभी की डेट में बैन है, रुका हुआ है। ऐसे ही जापान से बहुत सा रॉ मटेरियल है और भी देशों से बहुत सा रॉ मटेरियल आता है। तो जहाँ कहीं रॉ मटेरियल ईजिली हमें मिल जाता है, ठीक है, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करना या उसके पास ही मैन्युफैक्चरिंग का स्थापित होना भी एक एडवांसमेंट है, एक आपके लिए एक फ़ायदा है, उन कंपनीज के लिए फ़ायदा है जो बिजनेस की फील्ड में है। फिर है LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये शब्द सुने हैं, तीनों सुने होंगे। Yes, sir. Yes, sir. So if we talk about liberalization, लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है? Any idea about liberalization? Sir, licensing fees. Licensing fee? No. इंडिया में 91 की जो पॉलिसी आई थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसमें सबसे पहले इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग बिजनेस वहाँ पर इंडिया में चालू हुआ। देखिए लिबरलाइजेशन बेसिकली क्या है? लिबरल होना, उदार होना, उदारीकरण जो हम बात करते हैं ना हिंदी में बात करते हैं उदारीकरण। तो उदारीकरण क्या है? उदार होना, बड़ा होना, बड़प्पन दिखाना, यानी कि दूसरे देश की कंपनीज को, दूसरे देशों में जो कंपनीज हैं उनको अपने यहाँ पर इनवाइट करना कि आइए भाई हमारे यहाँ बिजनेस करिए, हम आपको सारी फैसिलिटी देंगे, हम आपको जगह देंगे। तो बेसिकली ये लिबरलाइजेशन को प्रमोट करता है। सर जो रेस्ट्रिक्शंस हैं या जो पॉलिसीज गवर्नमेंट ने बनाई होती है उनको थोड़ा लूजन अप करना दूसरी कंपनीज के लिए, ताकि वो आके इन्वेस्ट करें, वो भी लिबरलाइजेशन का ही पार्ट है। लिबरल होना मतलब वही उदार होना, उनको छूट देना, उनको रिलैक्स करना कि भाई ऐसा नहीं होगा, आप यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कीजिए, आपका पैसा डूबेगा नहीं,
several things are there. ठीक है. On the way privatization, ज्यादातर चीजें प्राइवेटाइजेशन सेक्टर में ओपन की जा रही हैं. पहले एक समय था कि ज्यादातर जो पब्लिक सेक्टर थे, बहुत सारे उत्पाद पब्लिक सेक्टर के अंडर में आते थे, लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट ने और उसको सब प्राइवेट कर दिया. सब प्राइवेट कर दिया. आज की डेट में एक आध चीज छोड़कर सभी लगभग प्राइवेट, रेलवे को छोड़कर सभी लगभग प्राइवेट में आ चुका है. ठीक है, तो ये भी प्राइवेटाइजेशन को दर्शा रहा है. ग्लोबलाइजेशन अभी हम बात कर ही चुके हैं. तो ये सारी चीजें बेसिकली जब से हो रही हैं, जब से हम इनकी बात कर रहे हैं, लिबरलाइजेशन की बात करी, प्राइवेटाइजेशन की बात करी, ग्लोबलाइजेशन की बात करी, ये सब हमें इंटरनेशनल बिजनेस की महत्वता या उसकी नीड को बता रहा है कि इंटरनेशनल बिजनेस क्यों बढ़ा है पिछले के कुछ सालों में. फिर बात आ रही है टू इंक्रीज द मार्केट शेयर. कंपनी जनरली मार्केट शेयर को इंक्रीज करने के लिए, अभी मैंने नेस्ले का एग्जांपल लिया, ठीक है, तो मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए उनका घर में मार्केट सिर्फ 20% है, बाहर के मार्केट से 80% है, उसको भी बढ़ाने के लिए कंपनीज इंटरनेशनल बिजनेस में आती हैं. फिर है इंक्रीज इन क्रॉस बॉर्डर बिजनेस इज ड्यू टू फॉलिंग ट्रेड बैरियर्स बाय WTO एंड डिक्रीजिंग कॉस्ट इन टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन. ये ऊपर डिस्कस कर चुके हैं. एंड मैनी अदर फैक्टर्स. तो खास बात ये है कि जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी तरफ से भी फैसिलिटेटेड है इंटरनेशनल बिजनेस. और आज की डेट में जो क्रॉस बॉर्डर बिजनेस है, उस पर खासा ध्यान दिया जा रहा है कि कैसे बिजनेस को हम एकोमोडेट करें ताकि दोनों देशों को उसका फायदा पहुंचे. इट्स अबाउट म्यूचुअल बेनिफिट, कि अगर हम आपको कुछ सप्लाई कर रहे हैं तो उसके एवज में आपके देश से भी कुछ हमारे यहाँ आएगा और इसका फायदा दोनों देशों को पहुंचेगा. तो ये कहीं ना कहीं एक नीड है इंटरनेशनल बिजनेस. क्लियर है इतना? यस सर. एनी क्वेश्चन? नो सर. ठीक है, तो ये समझ में आ ही गया है. एंड टाइम ऑलमोस्ट हो ही गया है. ये बंद होने जा रही है स्क्रीन. ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे फिर कल. ओके ओके सर. ओके सर. ओके, थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. ओके. थैंक यू सर.